اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا کہ مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، دمشق کی طرف؟ نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے۔ وہاں میرا شیر موجود ہے، توما۔ دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ پریشانی، جاسیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا۔ تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ ہرقل نے غصے سے کہا، شراب شراب شراب! تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا۔ تم نہیں دیکھ رہے وہ سلطنت روم کو ذلت و رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرقل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ ملے۔ اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مطابق اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احوال و قوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے خد و خال کا جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فحل تھا، جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے، جو پاگل لگتا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد بن ولید نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا۔ جاسوس نے کہا، اس بستی کا نام فحل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابو العاور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فحل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاڑیں ماریں اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں۔ ابو العاور نے ایک سوار دستہ وہیں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرقل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔
इस हुक्म के तहत दमिश्क की तरफ जाने वाले रास्तों पर रूमियों ने अपने जासूस भेज दिए थे। दरियाए यरमुक के किनारे वाकूसा एक कस्बा था। किसी रूमी जासूस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर को आते देख लिया और पीछे जाकर इत्तला दी। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वाकूसा के करीब पहुंचे तो रूमी फौज के बहुत से दस्ते खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े थे। मौरखों ने लिखा है कि अजनादीन की लड़ाई से भागे हुए कई रूमी फौजी वाकूसा पहुंच चुके थे। उन्हें भी उन दस्तों में शामिल कर लिया गया था जो मुसलमानों को रोकने के लिए जंगी तरतीब में खड़े थे, मगर उनमें लड़ने का जज्बा सर था, क्योंकि उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। जिन कमांडारों और सिपाहियों ने अभी मुसलमानों से जंग नहीं लड़ी थी, वो अजनादीन के भगोड़ों से पूछते थे कि मुसलमान लड़ने में कैसे हैं। उन्हें कुछ इस किस्म के जवाब मिले, देख लो 30,000 ने 90,000 को इस तरह शिकस्त दी है कि सिपह सालार से छोटे से सालार तक एक भी जिंदा नहीं। उन्होंने हमारी आधी नफरी मार डाली है, जख्मियों का कोई हिसाब ही नहीं। मत पूछो दोस्त, मत पूछो, मैं तो उन्हें इंसान समझता ही नहीं। उनके पास कोई जादू है या वो जिन्नात जैसी कोई मखलूक है। उनका एक एक आदमी 10-10 आदमियों का मुकाबला करता है। उनके सामने कोई जम कर लड़ ही नहीं सकता। पूछते क्या हो, वो आ रहे हैं, खुद देख लेना। वो आए और उन्होंने देख लिया। देख ये लिया कि मुसलमान जो बेतरतीब काफिले की तरह आ रहे थे, देखते ही देखते वो जंगी तरतीब में हो गए। औरतें और बच्चे पीछे रह गए और उनका हिफाजती दस्ता अपनी जगह पर चला गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुहाफिजों वगैरह के साथ आगे हो गए और दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। पहले बयान हो चुका है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी चालों का और मुजाहिदीन को लड़ाने का अंदाज ऐसा था कि दुश्मन बौखला जाता। फिर मुसलमानों के हमले की शिद्दत से दुश्मन के सिपाहियों पर खौफ तारी हो जाता। उनमें से जो सिपाही भाग निकलते वो जहाँ जाते उस खौफ को अपने साथ ले जाते और फौज में फैलाते थे। ये साबित करने के लिए कि वो बिला वजह नहीं भागे, वो उस खौफ को मुबालगे से और ऐसे तरीके से बयान करते कि सुनने वाले ये समझ लेते कि मुसलमानों में कोई माफौकुल फितरत कुव्वत है। इस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन पर एक नफ्सियाती असर डाल रखा था जो हर मैदान में उनके काम आता था। ये कुव्वत माफौकुल फितरत ही थी जो अकीदे की सच्चाई, ईमान की पुख्तगी और जज्बे की शिद्दत से पैदा हुई थी। मुसलमान अल्लाह के हुक्म से लड़ते थे। उनके दिलों में कोई जाती गरज या लालच नहीं था। वाकूसा के मैदान में जब रूमी मुसलमानों के मुकाबले में आए तो उनके अंदाज में जोश व खरोश था और जारहियत भी शदीद नजर आती थी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हमला किया तो रूमियों में लड़ने का जज्बा उतना शदीद न था जितना होना चाहिए था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने से हमला किया और दोनों पहलुओं के कुछ दस्तों को फैलाकर इस हुक्म के साथ आगे बढ़ाया कि दुश्मन के पहलुओं की तरफ जाकर हमला करें। मुर्रिखों के मुताबिक रूमी सामने से हमले को रोकने के लिए ऐसी सूरत इख्तियार कर बैठे कि अपने पहलुओं को न देख सके। उन पर जब दाएं और बाएं से भी हमला हुआ और उनके दाएं बाएं के दस्ते मुसलमानों के दबाव से अंदर को सुकड़ने और सिमटने लगे तो वो घबरा गए और उन पर वो खौफ तारी हो गया जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मंसूब था। उस खौफ ने रूमियों के पांव उखाड़ दिए। उन रूमी दस्तों के लिए हुक्म ये था कि वो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रोके रखें। वजह ये थी कि दमिश्क में जो रूमी फौज थी उसमें दूसरी जगहों से दस्ते भेजकर इजाफा किया जा रहा था। हरकल इस कोशिश में था कि उसके ये दस्ते मुसलमानों से पहले दमिश्क पहुंच जाएं। उसके लिए जरूरी था कि वाकूसा में मुसलमानों की फौज को रोक लिया जाता और ऐसी लड़ाई लड़ी जाती जो तूल पकड़ जाती। ऐसी लड़ाई के तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमियों को कुछ सोचने की मोहलत ही न दी। रूमी बेशुमार लाशें और जख्मी मैदान में छोड़कर भाग गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां उतना ही रुके कि अपने शहीदों का जनाजा पढ़कर दफन किया, जख्मियों को साथ लिया और माल गनीमत इकट्ठा किया और चल पड़े। ये अगस्त 634 ईस्वी का तीसरा हफ्ता और जमादिउल आखिर 13 हिजरी था। शहंशाह हरकल अंताकिया जा पहुंचा और वहां अपना हेडक्वार्टर बना लिया। हम्स से अंताकिया को रवाना होने से पहले उसने दमिश्क की रूमी फौज के सालारों तूमा, हरबीस और इजाजीर को पैगाम भेज दिया था कि वो फौरन अंताकिया पहुंचे। हरकल के पहुंचते ही तीनों सालार अंताकिया पहुंच गए। शहंशाह हरकल ने उनसे पूछा, क्या तुमने सुन लिया है कि तुम्हारे सालार वर्दान और कुबकुलार भी मारे जा चुके हैं? क्या तुम भी कैसर रूम की अजमत को सहन से उतार दोगे? क्या तुम्हारी नजरों में भी सलीब का तकद्दुस खत्म हो चुका है? सालार तूमा ने कहा, मुसलमान अभी तो हमारे सामने आए ही नहीं। हमें अभी ना आपने आजमाया है ना मुसलमानों ने। उन्हें आने दें, मैं आपकी बेटी के आगे शर्मसार नहीं हूँगा।
तूमा शहनशाह हरकल का दामाद था और वो दमिश्क का सिपाह सालार था। बड़ा पक्का मजहबी आदमी था और अपने मजहब ईसाइयत के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहता। हरकल ने उसे कहा, तूमा, तुम मजहब में इतने मगन रहते हो कि दमिश्क के दिफा की तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। तूमा ने कहा, मैं तो ये समझता हूँ कि मजहब न रहा तो दमिश्क भी नहीं रहेगा। क्या आप नहीं जानते कि मुसलमानों के खिलाफ जंग भी मजहब में शामिल है? मैं यहाँ अकेला तो नहीं। जंगी मामले सालार हरबीस के पास हैं और सालार अजाजीर भी मेरे साथ हैं। क्या अजाजीर फारसियों को और फिर तुर्कों को कई लड़ाइयों में शिकस्तें नहीं दे चुका? हरकल ने कहा, जितना भरोसा मुझे अजाजीर पर है उतना तुम दोनों पर नहीं। अजाजीर तजर्बाकार सालार है, तुम दोनों को अभी साबित करना है कि तुम अजाजीर के हम पल्ला हो। अजाजीर रूमियों का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हर मैदान में फतह हासिल की थी। अरबी जबान पर उसे इतना अबूर हासिल था कि वो अरबी बोलता तो शक होता था कि वो अरब का रहने वाला है। दमिश्क की फौज का कमांडर दरअसल वही था। अंताकिया में कुलूस नाम का एक रूमी सालार था। उसे हरकल ने 5000 नफरी की फौज देकर दमिश्क जाने को कहा। कुलूस ने कहा, शहनशाह हरकल, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं आपके सामने उस वक्त आऊंगा जब मेरी बर्छी की अन्नी के साथ मदीना के सालार खालिद बिन वलीद का सर होगा। हरकल ने कहा, तुम मुझे सिर्फ हलफ से खुश नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इब्ने वलीद का सर नहीं, तमाम मुसलमानों की लाशें देखना चाहता हूँ। फौरन दमिश्क पहुंचो, वहाँ कुमक की जरूरत है। सब चले जाओ और दमिश्क को बचाओ। तमाम सालार फौरन रवाना हो गए। हरकल का एक मुशीर खास हरकल के पास मौजूद था। शहनशाह हरकल, उस मुशीर ने कहा, सालार कुलूस को दमिश्क न भेजते तो अच्छा था। अगर उसे भेजना ही था तो सालार इजाजीर को दमिश्क से निकाल लेते। हरकल ने कहा, क्यों? वो बोला, क्या शहनशाह भूल गए हैं कि उन दोनों में ऐसी चपकलिश है जो दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर जाती है। उनकी आपस में बोलचाल बंद है। दरअसल कुलूस इजाजीर की अच्छी शोहरत से हसद करता है। कोई और वजह भी हो सकती है। हरकल ने पूछा, क्या तुम ये खतरा महसूस कर रहे हो कि वो लड़ाई के दौरान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मुशीर ने कहा, हाँ शहनशाह रूम, मैं यही खतरा महसूस कर रहा हूँ। हरकल ने कहा, ऐसा नहीं होगा। उन्हें ये एहसास तो जरूर होगा कि वो मिलकर न लड़े तो बहुत बुरी शिकस्त खाएंगे और वो मुझे खुश करने और एक दूसरे को मेरी नजरों में गिराने के लिए जोश व खरोश से लड़ेंगे। और अगर उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें यकीनन मालूम होगा कि उनकी सजा क्या होगी। मुशीर खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के आसार पहले से ज्यादा हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुजाहिदीन दमिश्क की जानिब बढ़े जा रहे थे। रूमी सालार अजाजीर ने दमिश्क पहुंचते ही शहर के दिफा को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। दमिश्क की शहर पनाह के 6 दरवाजे थे और हर दरवाजे का एक नाम था। अजाजीर ने दमिश्क को मुहासरे से बचाने का ये इंतजाम किया कि ज्यादा फौज शहर के बाहर रखी ताकि मुसलमानों को शहर तक पहुंचने ही न दिया जाए, उन्हें शहर से बाहर खत्म कर दिया जाए। शहर में खास तौर पर मुंतखब किए हुए दस्ते रखे गए। उनमें एक मुहाफिज दस्ता था जिसे जांबाज दस्ता कहा जाता था। उस 1 मील से कुछ ज्यादा लंबे और 4 फरलांग चौड़े शहर की आबादी में इस खबर ने हड़बोंग बपा कर दी थी कि मुसलमान शहर को मुहासरे में लेने आ रहे हैं। इस खबर से पहले मुसलमानों की दहशत शहर में दाखिल हो चुकी थी। सालार शहरियों को भी शहर के दिफा के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन शहरियों से उन्हें ताउन नहीं मिल रहा था। शहरी तो अपना मालो दौलत और अपनी जवान लड़कियों को छुपाते फिर रहे थे। उनमें से बाज ने अपने कुंभों को अपने साथ लेकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन फौज ने उन्हें रोक दिया। मुजाहिदीन का लश्कर दमिश्क से ज्यादा दूर नहीं गया था। जासूस जो आगे गए हुए थे वो बारी बारी पीछे आते, रिपोर्ट देते और फिर आगे चले जाते। अब मुजाहिदीन की जज्बाती कैफियत ऐसी थी जैसे उनका कोई घर ना हो, कोई वतन ना हो, बीवी ना हो, बच्चा ना हो, बस अल्लाह ही अल्लाह जिसके नाम का वो विरद करते जाते। या चंद मुजाहिदीन मिलकर कोई जंगी तराना गाते। उन्होंने अपना रिश्ता अल्लाह के साथ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस के साथ जोड़ लिया था। उन्होंने अपनी जानें अल्लाह की कुर्बानगाह पर रख दी। रूमियों के लिए वो जिस्म थे, लेकिन अपने लिए वो रूहें थीं और अपने जिस्मों और तकलीफ और जरूरियात से वो बेनियाज हो गए थे। उन्हें तो जैसे ये एहसास भी नहीं रहा था कि उनकी तादाद बहुत कम है और दुश्मन की तादाद कई गुना है। उनके सिपाहसालार खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की जज्बाती कैफियत भी ऐसी ही थी, लेकिन तारीख के उस अजीम जर्नैल की निगाह हकायक पर थी। वो सोचते रहते थे कि इतनी कम नफरी को इतनी ज्यादा नफरी के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया जाए कि मतलूबा नताइज हासिल हो। उन्होंने रूमियों को देख लिया और तस्लीम कर लिया था कि ये एक उम्दा फौज है।
उन्होंने ये भी पेश नजर रखा था कि रूमी अपने मुल्क में हैं और जो सहूलतें उन्हें हासिल हैं वो हमें नहीं मिल सकती। शिकस्त की सूरत में मुसलमानों के लिए वहाँ कोई पनाह नहीं थी। इस सूरत में उन्हें कैद या कत्ल होना था। इन अहवालो कवाइफ के पेश नजर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज में कुछ तब्दीलियां की थी। एक तो उन्होंने जासूसी के इंतजामात और जराए को पहले से बेहतर बनाकर उन्हें मुनज़्ज़म कर दिया। चंद और तब्दीलियों में काबिल जिक्र ये है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सवार दस्ता बनाया जिसमें 4000 मुंतखब घुड़सवार रखे। ये तेज रफ्तार और मुतहर्रिक दस्ता था। इसे तुलिया कहते थे। मुतहर्रिक से मुराद ये है कि इस रिसाले ने जमकर नहीं बल्कि भागते दौड़ते और इधर उधर हो जाते और दुश्मन को घुमा फिरा कर लड़ाते जंग में शरीक रहना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दस्ते की कमान अपने हाथ में रखी। दुश्मन की जानिब कूच के दौरान ये सवार दस्ता मुसलमानों के लश्कर के हिरावल में था। कूच का चौथा दिन था। हिरावल का ये सवार दस्ता एक बस्ती मिराजुस सफर के करीब पहुंचा तो आगे गए हुए 2 जासूस आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस दस्ते के साथ थे। जासूसों ने उन्हें बताया कि थोड़ी दूर आगे रूमी फौज तैयारी की हालत में पड़ाव किए हुए है। जासूसों के अंदाजे के मुताबिक वो मकाम दमिश्क से 12-13 मील दूर था। मौरखों ने लिखा है कि उस रूमी फौज की तादाद 12,000 थी और उसमें ज्यादातर सवार थे। उसके 2 सालार थे, एक अजाजीर और दूसरा कलूस। ये वही सालार थे जिनकी आपस में दुश्मनी थी। उन्हें दमिश्क के सिपा सालार तूमा ने इस मंसूबे के तहत भेजा था कि मुसलमानों के लश्कर को दमिश्क तक न पहुंचने दिया जाए। अगर उसे तबाह न किया जा सके तो इतना कमजोर कर दिया जाए कि वापस चला जाए। अगर ये भी न हो सके तो इतनी सी कामयाबी हर कीमत पर हासिल की जाए कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दिन दमिश्क से दूर रखा जाए ताकि दमिश्क के दिफा के लिए मजीद दस्ते वहाँ पहुँचाए जा सके और शहर में इतनी खुराक पहुँचा कर जमा की जा सके कि महासरा तूल पकड़ जाए तो शहर में कहत की सूरत पैदा न हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये मसला पैदा हो गया कि उनके साथ हिरावल का सिर्फ ये सवार दस्ता था जिसकी नफरी 4000 थी। बाकी लश्कर अभी बहुत दूर था। हिरावल की रफ्तार तेज थी। दुश्मन की मौजूदगी की इत्तला पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रफ्तार सुस्त कर दी। उसका एक मकसद तो ये था कि पूरा लश्कर आ जाए और दूसरा ये कि दुश्मन के करीब शाम को पहुँचे ताकि रात को आराम किया जा सके और अलस सुबह लड़ाई शुरू हो जाए। अगर जासूस आगे गए हुए न होते तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु लाइल्मी में 4000 सवारों के साथ दुश्मन के सामने जा पहुंचते। फिर सूरत हाल उनके हक में न रहती। रूमियों के उस 12,000 लश्कर ने बड़ी अच्छी जगह पड़ाव डाला हुआ था। वहाँ एक वादी थी जिसमें घने दरख्त थे और एक पहाड़ी थी। रूमी उस पहाड़ी के सामने और वादी के मुंह में थे। उन्होंने लड़ाई के लिए ये जगह मुंतखब की थी जो उनको कई जंगी फायदे दे सकती थी। मुसलमान उस फंदे में आ सकते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि सूरज गुरूब होने से जरा पहले दुश्मन के सामने पहुंचे। दुश्मन से उनका फासला 1 मील के लगभग था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्ते को रोक लिया और वहीं पड़ाव करने के लिए कहा। सूरज गुरूब हो गया इसलिए ये खतरा न रहा कि दुश्मन हमला कर देगा। जमादी-उस-सानी 13 हिजरी के चांद की 18वीं तारीख थी। आधी रात को चांदनी बड़ी साफ थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पापियादा आगे चले गए। रूमियों के सवार गश्ती संतरी गश्त पर थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे बचते पहाड़ी तक गए। वो जमीन के खद्दोखाल का जायजा ले रहे थे। रात गुजरते ही उन्हें यहाँ लड़ना था। वो देख रहे थे कि उनके सवार दस्ते के लिए भागने दौड़ने की जगह है या नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए परेशानी ये थी कि उनका लश्कर बहुत दूर था। उन्होंने पैगाम तो भेज दिया था कि रफ्तार तेज करें, फिर भी लश्कर जल्दी नहीं पहुंच सकता था। उसकी रफ्तार तो पहले ही तेज थी। मुसलमानों का कूच होता ही तेज था। 19 अगस्त 634 ईस्वी 19 जमादी-उस-सानी 13 हिजरी की सुबह तुलू हुई। फजर की नमाज से फारिग होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवार दस्ते को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। रूमी भी तैयारी में आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमियों की तरतीब देखी तो उन्हें शक हुआ कि रूमी हमले में पहल नहीं करना चाहते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहल करने की पोजीशन में भी नहीं थे। उन्हें इतना वक्त दरकार था कि बाकी लश्कर पहुंच जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमियों का इरादा मालूम करने के लिए अपने सवार दस्ते के एक हिस्से को हमला करके पीछे या दाएं बाएं निकल जाने का हुक्म दिया। तकरीबन 1000 घोड़े समंदरी तूफान की मौजों की तरह गए। रूमियों ने हमला रोकने की बजाय ये हरकत की कि पीछे हटने लगे। मुसलमान सवार इस ख्याल से आगे न गए कि दुश्मन घेरे में ले लेगा। वैसे भी उन्हें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी थी। वो जिस रफ्तार से गए थे उसी रफ्तार से घोड़े मोड़ते हुए दूर का चक्कर काट कर आ गए। चंद एक सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। सबको तवक्को थी कि अब रूमी हमले के लिए आएंगे।
उनकी फौज 3 गुना थी, मगर उन्होंने कोई जवाबी हरकत न की। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, खुदा की कसम रूमी कुछ और चाहते हैं, ये हमारे साथ खेलना चाहते हैं और मैं अपने लश्कर के इंतजार में हूँ। सालार ज़र्रार बिन अल अज़वर ने कहा, इनके साथ खेलो इब्ने वलीद, ये लड़ना नहीं चाहते, हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और इन्हें शायद मालूम नहीं कि हमारा लश्कर अभी दूर है। सालार शराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये भी सोच इब्ने वलीद, क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारा लश्कर शायद किसी और तरफ से इन पर हमला कर दे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इनका ध्यान फिर देता हूँ। रूमियों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये तरीका इख्तियार किया कि दुश्मन को इनफरादी मुकाबलों के लिए ललकारा।